फ्रेंड्स, मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज 8th चैप्टर द गुरु एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस. फर्स्ट पॉइंट इज need for training in spiritual life. A disciple of a great Chinese mystic philosopher Lao Tzu narrates the following story. A young man joined the gang of a robber chief named Chi. One day, the young apprentice asked his leader, "The right way be found in thieving?" And Chi replied, "Pray tell me of anything in which there is no right way. In thieving, there is the wisdom by which the booty is located, the courage of going on the first, the heroism of coming out last, the insight of calculating the chances of success. Finally, there is justice in dividing the spoil equitably among the robbers. There never was a successful thief who did not possess these five qualities. There are principles to be learned in every activity of life, even in thieving. An apprentice in any profession needs training. This is all the more true of a spiritual life. The disciple of Lao Tzu continues. The doctrine of the wise is equally indispensable of the good man and to the robber. Since good men are few and bad men are in the majority, the good the sages do in word is little, and evil done by the rest is great. In the course of my travels in the West, I have been amazed at the amount of energy which is constantly expended on destructive activities. How many soldiers, pilots, technicians, and even scientists are being trained for war? Why can't even a fraction of the same time and energy be used for training in the spirit, in making ourselves receptive to divine illumination, bliss, and peace? The ideal which the great sages of the Upanishad place before us as the goal of life is self realization. But the ideal cannot be realized without spiritual awakening. However, in the religious field, we see too much of rituals and ceremonial and too little of true spiritual awakening. Real religion, which is self realization, has for this reason become discredited. And there is now an overabundance of religious pretenders who claim supernatural powers and promise easy passports to heaven, while parasites unwilling to strive for moral purity want to attain salvation easily. मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ के 8th चैप्टर में आज जो टॉपिक है द गुरु एंड द स्पिरिचुअल गाइडेंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा नीड फॉर ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ. ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में किन चीज़ों की ट्रेनिंग की आवश्यकता है. एक महान चीनी रहस्यवादी दार्शनिक लाओ त्सु के एक शिष्य ने निम्नलिखित कहानी सुनाई. एक युवक ची नामक एक डाकू सरदार के गिरोह में शामिल हो गया. उस दिन उस युवा शिष्य ने अपने नेता से पूछा, क्या चोरी में सही मार्ग पाया जा सकता है? और ची ने उत्तर दिया, कृपया मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें ताओ कोई नियम या सही मार्ग न हो. चोरी में वह बुद्धि होती है जिससे लूट का माल ढूंढा जाता है. पहले जाने का साहस होता है, अंत में बाहर आने की वीरता होती है. सफलताओं की संभावनाओं की गणना करने की अंतर्दृष्टि होती है और अंत में लूट को लुटेरों के बीच में समान रूप से बांटने में न्याय होता है. ऐसा कोई सफल चोर नहीं हुआ जिसके पास ये 5 गुण न हों. जीवन की हर गतिविधि में, यहाँ तक कि चोरी में भी कुछ सिद्धांत सीखने होते हैं. किसी भी प्रोफेशन में प्रशिक्षु को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. आध्यात्मिक जीवन के मामले में ये और भी अधिक आवश्यक है.
लाओ त्सु के शिष्य आगे कहते हैं कि बुद्धिमान का सिद्धांत अच्छे व्यक्ति और डाकू दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। क्योंकि अच्छे लोग कम और बुरे लोग जो बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में, इसलिए दुनिया में ऋषियों द्वारा किया गया अच्छा काम कम है और बाकी लोगों द्वारा किया गया बुरा काम बहुत अधिक है। पश्चिम में अपनी यात्राओं के दौरान मैं उस ऊर्जा की मात्रा पर चकित हूँ जो लगातार विनाशकारी गतिविधियों पर खर्च की जाती है। कितने सैनिकों, पायलटों, तकनीशियनों और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, और उसी समय और ऊर्जा का एक अंश भी आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए, खुद को दिव्य प्रकाश, आनंद और शांति के लिए ग्रहणशील बनाने के लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता। उपनिषदों के महान ऋषियों ने जीवन के लक्ष्य के रूप में जो आदर्श हमारे सामने रखा है वह है आत्म साक्षात्कार। लेकिन आध्यात्मिक जागृति के बिना इस आदर्श को साकार नहीं किया जा सकता। हालांकि धार्मिक क्षेत्र में हम अनुष्ठान और अनुष्ठानों को बहुत अधिक और सच्चे आध्यात्मिक जागरण को बहुत कम देखते हैं। वास्तविक धर्म आत्म साक्षात्कार है, इस कारण से बदनाम हो गया है और अब धार्मिक ढोंगियों की भरमार है जो अलौकिक शक्तियों का दावा करते हैं और स्वर्ग के लिए आसान पासपोर्ट का वादा करते हैं, जबकि परजीवी नैतिक शुद्धता के लिए प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हैं और आसानी से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। सर्वोच्च लक्ष्य को वह केवल वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है या जो कम से कम उसके बहुत निकट पहुंच गया है। और आध्यात्मिक जीवन में सही मार्गदर्शन के महत्व के बारे में उपनिषदों में कहा गया है कि बहुत से लोग आत्मा के बारे में सुनते ही नहीं और बहुत से अन्य लोग यद्यपि सुनते हैं परंतु उसे समझते नहीं। जो इसके बारे में बोलता है वह अद्भुत है और जो इसे सीखता है वह अद्भुत है। धन्य है वह जो अच्छे गुरु द्वारा सिखाया गया उसे अनुभव कर पाता है। The truth of self cannot be fully understood when taught by an inferior person, for there are different opinions regarding it. Subtler than the subtlest is the self beyond all logic. When taught by a teacher who has realized himself as one with the Brahma, a person attains the goal and becomes free from transmigration. Let a man devoted to spiritual life examine carefully the uh, ephemeral nature of heavenly enjoyment. To know the eternal, let him humbly approach a guru established in Brahma and well versed in the scriptures. To a disciple who approaches reverently, who is tranquil and self controlled. The wise teacher gives that knowledge faithfully and without stint, by which is known the truly existing changeless self. आत्मा का सत्य किसी निरंतर व्यक्ति द्वारा सिखाए जाने पर पूर्णतः नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसके विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म यह आत्मा है, सभी तर्कों से परे, ब्रह्मा से एक रूप होने का साक्षात्कार करने वाले गुरु द्वारा सिखाए जाने पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और आवागमन से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में समर्पित व्यक्ति को स्वर्गीय भोगों की क्षणभंगुर प्रकृति का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना चाहिए। शाश्वत को जानने के लिए उसे ब्रह्मा में स्थित और शास्त्रों में पारंगत गुरु के पास विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। जो शिष्य श्रद्धा पूर्वक शांत तथा संयमी होकर जाता है उसे बुद्धिमान गुरु निष्ठापूर्वक और बिना किसी बाधा के वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे वास्तविक रूप से विद्यमान अपरिवर्तनशील आत्मा का ज्ञान होता है। Next point is function of the guru. What does self realization mean? आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? It means the union of the individual spirit with the supreme spirit.
इसका अर्थ है व्यक्तिगत आत्मा का सर्वोच्च आत्मा के साथ मिलन। After passing through various experience and suffering in life, the individual soul draws closer to the oversoul and finally realize its oneness with it. जीवन में विभिन्न अनुभवों और कष्टों के माध्यम से व्यक्तिगत आत्मा परमात्मा के करीब आती है और अंततः उसके साथ अपनी एकता का एहसास करती है। उपनिषद इस प्रक्रिया का एक सुंदर वर्णन देता है, जैसे सुनहरे पंखों वाले दो अभिन्न साथी पक्षी एक ही वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हैं। उनमें से एक वृक्ष के मीठे फल कड़वे फलों को चखता है और दूसरा दोनों में से किसी को भी न चखते हुए शांत भाव से देखता है। जीवात्मा अपने वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप को भूलकर मोहग्रस्त होकर सांसारिक जीवन में उलझ जाती है और दुख भोगती है। लेकिन जब वह पूज्य भगवान का अपना सच्चा स्वरूप समझती है और उनकी महिमा को देखती है तो वह दुख से मुक्त हो जाती है। वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू डिवाइन एसेंस। हम अपने सच्चे ईश्वरी सार को भूल चुके हैं। So instead of moving closer to God, we get drawn in worldly existence more and more. Somebody must remind us for our real nature. He who does this is guru or spiritual teacher. The function of the teacher is to awaken the disciple from his age long sleep and show him the way to the divine. The guru is not like the Christian priest who stands between man and God. The word guru etymologically means a spiritual guide who removes darkness and brings light. He helps us to dehypnotize ourselves by removing the false notions we have been entertaining about ourselves. इसलिए ईश्वर के करीब जाने के बजाय हम सांसारिक अस्तित्व में और अधिक डूबते ही जा रहे हैं। किसी को हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को याद दिलानी चाहिए। जो ऐसा करता है वह गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक है। शिक्षक का कार्य शिष्य को उसकी सदियों पुरानी नींद से जगाना और उसे ईश्वर का मार्ग दिखाना है। गुरु ईसाई पादरी की तरह नहीं जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में खड़ा होता है। गुरु शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो अंधकार को दूर करता है और प्रकाश लाता है। वह हमें अपने बारे में मन में पली झूठी धारणाओं को दूर करके खुद को सम्मोहित करने में मदद करता है। ब्रह्मानंद यूज्ड टू लाइकन द टीचर टू ए किंग्स मिनिस्टर. A poor man requests the minister to grant him an audience with the king who lives in a palace with 7 gates. The minister grants his request and leads him through the gate one after another. At each gate there stands a richly dressed officer, and each time the poor ask the minister if that is the king. The minister answered, "No," each time until they have passed the 7th gate and have come to the presence of the king seated there in all his regal splendor. Then the poor man does not ask any more question. What he needed was somebody who could guide him through the gates and corridors of the palace. So is it with the Guru, says Swami Brahmanand. Like the king's minister, he leads the disciple through the different stages of spiritual unfoldment until he leaves him with the Lord. The human personality is like a big palace with buildings and courtyards, one within another. The Supreme Spirit comes to us in the form of a teacher, making us realize that we are not the physical body, not the mind, not the feelings, ideas, and emotions, but the spirit eternal. When we travel to an unknown country, it is wise to have a guide who knows the way. The Guru is the guide who leads us to our destination and leaves us there.
स्वामी ब्रह्मानंद शिक्षा की तुलना राजा के मंत्री से करते हैं। एक गरीब आदमी मंत्री से अनुरोध करता है कि वह उसे 7 दरवाजों वाले महल में रहने वाले राजा से मिलवा दे। मंत्री उसका अनुरोध स्वीकार करता है और उसे एक के बाद एक द्वारों से होकर ले जाता है। प्रत्येक द्वार पर एक भव्य पोशाक पहने अधिकारी खड़ा होता है और हर बार गरीब आदमी मंत्री से पूछता है कि क्या वह राजा है। मंत्री हर बार नहीं का जवाब देता है, जब तक कि वे 7वें द्वार से गुजरकर राजा के सामने नहीं पहुंच जाते, जो अपने पूरे राजसी वैभव में वहां बैठा हुआ है। उसके बाद गरीब आदमी कोई सवाल नहीं पूछता। उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे महल के द्वारों और गलियारों से होकर ले जा सके। स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं कि गुरु के साथ भी ऐसा ही होता है। राजा के मंत्री की तरह वह शिष्य को आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए तब तक ले जाता है जब तक कि वह उसे भगवान के पास नहीं छोड़ देता। मानव व्यक्तित्व एक बड़े महल की तरह है, जिसमें एक ही भीतर एक इमारतें और आंगन हैं। सर्वोच्च आत्मा एक शिक्षक के रूप में हमारे पास आती है और हमें एहसास कराती है कि हम भौतिक शरीर नहीं हैं। मन नहीं, भावना नहीं, विचार नहीं, हम भावनाएं नहीं है बल्कि शाश्वत आत्मा है। जब हम किसी अनजान देश की यात्रा करते हैं तो रास्ता जानने वाले मार्गदर्शक को अपना साथ रखना बुद्धिमानी है। गुरु वह मार्गदर्शक है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। पॉइंट इज नीड फॉर अ गुरु। In India, we take the necessity of a guru for granted in spiritual life. When I first went to Europe, I was surprised to hear some religious groups saying that they could commune with God, hear the voice of God, get direction about spiritual life without any special training. I studied a few cases and found, as I had expected, that these peoples were hearing their own voice, which sometimes were good. God and the divine voice are far off from the impure soul. A well trained, pure hearted person can certainly commune with God, the indwelling spirit. But when impure and untrained individuals make the same claim, they only deceive themselves. And yet they say they need no outside help. My teacher Swami Brahmanand used to say, one requires a teacher even when one wants to learn stealing. And this is sublime Brahma Vidya, the knowledge of Brahma, does it not require a teacher to acquire it? There is no mystery in this. People go to Madame Curie to study the properties of radium. They go to Rutherford to learn about the nature of the atom. As in natural science, the guidance of a competent teacher is necessary. So, in spiritual science, the guidance of a guru is absolutely necessary to learn the technique of realizing the self. Here we are traveling into religions of which we know nothing. Those who do not feel the need of any teacher, who are over anxious to be teacher of others, should remember that the blind should not try to lead the blind. Hindu scriptures repeatedly stress the importance of the guru. Take, for instance, the Bhagavad Gita. In it, Krishna at first simply takes Arjuna to the battlefield without giving him any spiritual instruction. Then Arjuna pleads with him, overpowered by grief, my mind is confused regarding the right path. I supplicate you as your disciple. Instruct me who have taken refuge in you. It is only when Arjuna accepts Krishna as the Guru does the divine teacher begin his teaching. In Sankara's crest of discrimination, we find the disciple appealing to his teacher, O Master, I have fallen into the sea of birth and death. Save me from this misery.
गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? भारत में हम आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आवश्यकता को हल्के में लेते हैं। जब मैं पहली बार यूरोप गया तो मुझे कुछ धार्मिक समूहों को ये कहते हुए सुनकर आश्चर्य हुआ कि वे बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के ईश्वर से संवाद कर सकते हैं, ईश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ मामलों का अध्ययन किया और पाया कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये लोग अपनी आवाज़ सुन रहे थे जो कभी कभी अच्छी होती थी। ईश्वर और दिव्य आवाज़ अशुद्ध आत्मा से बहुत दूर है। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीचर ही इस आवाज़ को सुन सकता है। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर अंतरात्मा से संवाद कर सकता है, लेकिन अशुद्ध और अप्रशिक्षित व्यक्ति यही दावा करता है तो वे केवल खुद को धोखा देते हैं और फिर भी वे कहते हैं कि उन्हें किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद कहा करते थे कि जब कोई चोरी करना भी सीखना चाहता है तब भी उसे गुरु की आवश्यकता होती है। और वह उत्कृष्ट ब्रह्मा विद्या, ब्रह्मा का ज्ञान, क्या इसे प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? इसमें कोई रहस्य नहीं कि लोग रेडियम के गुणों का अध्ययन करने के लिए मैडम क्यूरी के पास जाते हैं, वे परमाणु की प्रकृति के बारे में जानने के लिए रदरफोर्ड के पास जाते हैं। जैसे प्रकृति विज्ञान में एक योग्य शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक है, वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान में भी आत्म साक्षात्कार की तकनीक सीखने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार गुरु के महत्व पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए भागवत गीता को ही लें। इसमें कृष्ण पहले अर्जुन को युद्ध करने के लिए मैदान में ले जाते हैं, बिना उसे कोई व्यावहारिक शिक्षा दिए। फिर अर्जुन उनसे विनती करता है, शोक से अभिभूत होकर, कि मेरा मन सही मार्ग के बारे में भ्रमित हो गया। मैं आपसे अपने शिष्य के रूप में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ जैसे शरणागत को शिक्षा दीजिए। और जब अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तभी दिव्य शिक्षक अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। कृष्ण के विवेक के शिखर में हम शिष्य को अपने गुरु से प्रार्थना करते हुए पाते हैं, हे गुरु, मैं मृत्यु और जीवन के सागर में गिर गया हूँ, मुझे इस दुख से बचाइए। आज इतना ही। कल हम जानेंगे आध्यात्मिक दीक्षा की शक्ति।